بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور اوریجنل اور میں ہوں اسد۔ اس سے پہلے آپ اس کہانی کی 135 اقساط سن چکے ہیں، اب قسط 136 ملاحظہ فرمائیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ ہرگز نہیں، وہ غضبناک ہو گیا۔ اس نے دوبارہ حملہ کیا۔ اس کے گھونسے ہتھوڑے کی طرح برسنے لگے تھے۔ یوسف، تمہیں شکست ہوگی، میں تم سے اپنا بدلہ لوں گا، وہ چلا رہا تھا۔ میں اس کے گھونسوں سے بچتا یکدم سلپ ہوا اور گھومتی لات اس کے پیروں پر ماری۔ غصے نے اس کی عقل ضبط کر دی تھی۔ وہ میرے وار کو نہ سمجھ سکا اور دھڑام سے نیچے جا گرا۔ میں نے لیٹے لیٹے ایڑیاں اٹھا کر اس کے سینے اور گردن پر ماری۔ اس نے وار روکنے کی کوشش کی مگر گردن پر وار سخت لگا تھا۔ میں نے پیر موڑ کر اس کے منہ پر مارے اور وہ بینگن کی طرح لڑکتا چلا گیا۔ میں نے پاؤں اچھال کر خود کو کھڑا کیا۔ الیکٹرک بھی اٹھ رہا تھا۔ میں نے بھاگ کر ہوا میں جست لگائی اور اسے لے کر زمین پر جا گرا۔ اس کا سر فرش سے ٹکرایا تھا۔ اس نے ہاتھوں سے میرے سینے اور پیٹ پر ضربیں لگائیں اور میں نے بھی اس کے سر پر وار کیے۔ 6 منٹ ہم گتھم گتھا شدید قسم کی مار پیٹ کرتے رہے۔ میرے ہونٹ اور ناک بھی خون آلود ہو گئے اور اس کی دونوں بھویں اور ماتھے سے خون ابلنے لگا تھا۔ بالآخر اس نے مجھے پیروں پر رکھ کر اچھال دیا۔ ایک لمحے کو میں اس سے الگ ہوا لیکن اس کی جرسی میرے ہاتھ میں تھی۔ میں دوبارہ اس پر گرا۔ اس بار اس کے منہ سے چیخ سے نکل گئی تھی۔ میرا گھٹنا اس کے پیٹ میں اتر گیا تھا۔ اسے عضلات متحرک کرنے کا موقع نہیں ملا۔ میں نے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر لگاتار گھٹنے سے اس کے پیٹ میں پے در پے ضربیں لگائیں۔ وہ خاموشی سے برداشت کرتا رہا اور کسی طرح اپنا ہاتھ میرے پنجے سے نکال لیا۔ جانے کب اس کا آہنی کھونسا میری ٹھوڑی پر پڑا۔ اس بار میں فضا میں بلند ہوا تو مجھے اپنا ہوش نہیں تھا۔ چند لمحے تو جیسے تاریکی چھائی رہی۔ الیکٹرک کا سب سے خطرناک ہتھیار اس کا گھونسا تھا۔ میں نے ایک ویڈیو میں اسے محض ایک گھونسے میں اپنے حریف کو موت کے گھاٹ اتارتے دیکھا تھا۔ تاریکی کے باوجود مجھے احساس ہوا کہ الیکٹرک میری طرف چھپٹ رہا ہوگا۔ اگر وہ مجھے اسی حالت میں مارنے آ گیا تو شاید پھر مجھے قیامت کے دن ہی ہوش آئے گا۔ میں بے اختیار فرش پر لڑک گیا۔ الیکٹرک میرے سر کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن میرے لڑکنے کی وجہ سے اسے کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ اب تاریکی چھٹ گئی تھی اور مجھے اس کی گھومتی لاتیں صاف نظر آنے لگی تھی۔ ایک بار رول ہوتے ہوئے میں پاؤں سامنے کی طرف لایا اور اس کے پیروں میں پھنسانے کی کوشش کی۔ اس نے میرے گھٹنے پر سخت ضرب لگائی تھی اور میں اچھل کر پیچھے چلا گیا تھا۔ میں کسی قدر دقت کے ساتھ فرش سے اٹھا۔ میرا سر اب بھی چکرا رہا تھا۔ میری سانس دھونکنے کی طرح چل رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پھیپھڑے آکسیجن جذب کرنے کے لیے دیوانہ وار کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے اپنی ابتر حالت کا احساس ہو رہا تھا اور غالباً الیکٹرک کو بھی۔ چوٹیں اسے بھی بے شمار آئی تھی مگر ان سے ان کے جسمانی نظام پر خاص اثر نہیں پڑا تھا۔ اس کی سانس قدرے تیز مگر ہمواری تھی۔ مقابلہ آسان نہیں ہے، میں نے سوچا اور محتاط انداز میں اس کی طرف بڑھا۔ وہ اچانک فضا میں اچھلا اور ہوا میں گھومتے ہوئے لات میری گردن پر مارنے کی کوشش کی۔ اگر اس کی لات نشانے پر لگ جاتی تو میری گردن بھی ٹوٹ سکتی تھی۔ میں لات سے بچنے کے لیے پھرتی دکھائی تھی، اس کے باوجود ایڑی کن پٹی پر لگتی ہوئی گزر گئی تھی۔ دنیا یکدم میری نگاہوں کے سامنے زیر و زبر ہونے لگی۔ میں پھرکی کی طرح گھومتا فرش پر گرا۔ تاریکی چھانے لگی تھی۔ میں نے بمشکل سر اٹھا کر دیکھا۔ الیکٹرک دوڑتے ہوئے فضا میں بلند ہوا اور اس کی ایڑی کا رخ میری گردن کی طرف تھا۔ اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنی دیر بے ہوش رہا تھا۔ بہرحال بے ہوش ہوتے وقت میرا یہی خیال تھا کہ اس دنیا کی آخری جھلک ہے اور میں اب روز قیامت ہی اٹھوں گا۔ اس سے پہلے فرشتوں کو حساب کتاب دینے میں وقت اچھا گزرے گا، کم سے کم بوریت تو نہیں ہوگی۔ دنیا کے کسی بھی بر اعظم کے باہر اس جزیرے پر میں اپنی احمقانہ جذباتیت کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ بعد میں مجھے یہ جذباتیت ہی لگی تھی کہ میں فوری طور پر الیکٹرک سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، حالانکہ میں اسے اپنے ساتھ بھی لے جا سکتا تھا اور مکمل طور پر فٹ ہونے کے بعد وہ جہاں چاہتا اس سے لڑ سکتا تھا۔ لیکن اس کی باتوں میں آ کر میں نے عقل کو بالائے طاق رکھ کر اس سے لڑنا قبول کیا۔ میں مکمل طور پر صحت یاب نہیں تھا اور ڈاکٹروں نے مجھے کسی بھی بھاری سرگرمی سے الگ رہنے کو کہا تھا۔ رفتہ رفتہ ہوش کی دنیا میں آنے کے بعد میں نے آنکھیں کھولی اور خود کو بدستور اسی دنیا میں پا کر اپنی سخت جانی پر تعجب کا اظہار کیا۔ میں اسپتال کے کمرے میں تھا اور اسپتال بھی جانا پہچانا تھا، یعنی جزیرے کا اسپتال تھا۔ مرہم پٹی اور شاید سن کر دینے والے انجیکشن کی وجہ سے میں درد محسوس نہیں کر رہا تھا۔ کمرے میں دودھیا روشنی تھی اور میں اندازہ لگانے سے قاصر تھا کہ کیا وقت ہو رہا ہے اور میں کتنی دیر بے ہوش رہا تھا۔ یہ بات یقینی تھی کہ جزیرے پر آرگنائزیشن کے بیرونی دستے آ چکے ہوں گے اور میں ایک بار پھر آرگنائزیشن کے قبضے میں تھا۔ میں سوچوں میں غرق تھا کہ دروازہ کھلا اور ایک چینی نژاد ڈاکٹر کی صورت نظر آئی۔
कैसे हो? उसने पास आकर नब्ज देखी। जिंदा हूं, फिर बच गया हूं। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की मगर मुंह पर कई जगह लगे टेप की वजह से नाकाम रहा। इलेक्ट्रिक कहाँ है? मैं उसके हाथों जिंदा कैसे बच गया? वो इसी अस्पताल में है, एक जगह सो रहा है, डॉक्टर बोला। वो भी कहता है कि जब तक तुम्हें देख कर तुमसे बात न कर ले वो अस्पताल से नहीं जाएगा। वक्त क्या हुआ? मैंने पूछा। शाम के 7 बज रहे हैं। क्या ऑर्गेनाइजेशन वाले आ गए हैं? उसने सर हिलाया। वो नुकसान देख रहे हैं। मेरा अंदाजा है कि वो जजीरा छोड़ जाएंगे। वो जरा सा झुका और सरगोशी के अंदाज में बोला, फिक्र ना करो, हम तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम कौन? मैंने आहिस्ता से पूछा। चांद ग्रे और इलेक्ट्रिक। चांद ग्रे? मेरे जहन को झटका लगा था। वो जिंदा है? कहाँ है वो? मैं अभी भेजता हूँ, डॉक्टर बोला और बाहर चला गया। 1 मिनट बाद चांद ग्रे की सूरत नजर आई। वो बिल्कुल ठीक ठाक बल्कि ताज़ा दम लग रहा था। साफ सुथरा लिबास और शेव किया हुआ चेहरा लगता था। वो इस सारे हंगामे से दूर किसी महफूज जगह बैठा रहा था। उसने पास आकर मेरे सीने पर हाथ रखा और नरमी से पूछा, यूसुफ अब कैसा महसूस कर रहे हो? ठीक हूं और कुछ सवाल करने के लिए बेताब हूं। तरतीब वार करो। पहला सवाल यह है कि मैं बच कैसे गया, जबकि बेहोश होने से पहले मैंने इलेक्ट्रिक को अपनी गर्दन पर वार करने के लिए हवा में परवाज करके आते देखा था। यह कारनामा इस खाकसार ने अंजाम दिया है, चांद ग्रे बोला। इससे पहले कि उसका वार तुम्हारी गर्दन पर पड़ता मैंने रास्ते में उसे धक्का दे दिया, और जब मैंने उसे बताया कि तुम लड़ने के लिए फिट नहीं थे तो उसका शर्मिंदगी से बुरा हाल हो गया था। दूसरा सवाल यह है कि तुम कहां से नाजिल हुए और अब तक कहां छुपे थे? मैं बर वक्त इत्तिफाक ही से नाजिल हुआ। मैं तो फरार के लिए एयरपोर्ट की तरफ आया था, और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि मैं छुपा कहां रहा, तो मैं बंदरगाह की तरफ जाने वाली सड़क के किनारे जंगल में रुपोश था। मैं बंदरगाह से कुछ दूर था जब ब्लास्ट हुआ। अगर मैं 100 गज आगे चला जाता तो छत समेत ऊपर गिरने वाले पत्थरों तरह पिस कर रह जाता। मैं वापस भागा था, मगर जब कस्बे के नजदीक पहुंचा तो यहां पर मौत रक्स कर रही थी। ऑर्गेनाइजेशन वाले जान बचाते फिर रहे थे। इन हालात में कस्बे में दाखिल होना खुदकुशी करने के मुतरादिफ था, इसलिए वापस चला गया, और जब तक सुबह की रोशनी नहीं फैल गई मैं जंगल ही में रहा था। फिर मैंने ऑर्गेनाइजेशन के तैयारों को आते देखा तो एयरपोर्ट का रुख किया। इलेक्ट्रिक तुम्हारा खात्मा करने जा रहा था। मैंने बर वक्त मुदाखलत करके उसे बाज रखा। उसने गहरी सांस ली। और तीसरा सवाल यह है कि तुमसे मेरी कब जान छूटेगी जान ग्रे? छूटेगी भी या नहीं? वो हंसा। इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, शायद खुदा के पास हो। खुदा से मेरी दरख्वास्त है कि तुमसे मेरी जान छुड़ाए। चांद ग्रे फिर से हंसा और पलट कर आहिस्ता से पूछा, फिलहाल तुम्हें मेरी जरूरत है। अब इस जजीरे पर मौजूद हर फर्द से तफ्तीश की जाएगी, और जिस पर बगावत में हिस्सा लेने का शुबा हुआ उसका क्या हशर हो सकता है तुम अच्छी तरह जानते हो। इस बहाने तुम फिर मुझे अपने कब्जे में रखना चाहते हो? मैंने तलखी से कहा। नहीं, मैं तुम्हारी मदद करना चाह रहा हूं। वो धीमे लहजे में बोला, मेरी पूरी कोशिश होगी कि तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी न की जाए, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। अगर मेरे खिलाफ इंक्वायरी हुई तो तुम भी इसकी जद में आ सकते हो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ मुखलिस हूं। उसने संजीदगी से कहा तो मैं हंस पड़ा। जितना कोई भेड़िया भेड़ के लिए मुखलिस हो सकता है, वो बंधा गया था। मत यकीन करो, मुस्तकबिल खुद तुम्हें यकीन दिला देगा। मैं अपने मुस्तकबिल में तुम्हारा पुरखुलूस ताउन ही नहीं चाहता, इसलिए खुदा के वास्ते मेरी जान छोड़ दो। मैंने बेजारी से कहा, अगर यहां पर खाने को कुछ हो तो तुम मुझे भिजवा दो। चांद ग्रे चाहने के लिए उठा। एलिना वाली इमारत की तबाही से यहां पर दूसरों की बातें सुनने वाला सिस्टम फेल हो चुका है। उसने बताया, अगर कोई तुमसे बगावत के बारे में पूछे तो यही कहना कि तुम्हें कुछ मालूम नहीं। ठीक है, मुझे मालूम है मुझे क्या कहना है। चांद ग्रे के जाने के कुछ देर बाद एक थाई नर्स ने मुझे खाना खिलाया। अब अस्पताल में कोई भी सफेद पाम डॉक्टर या नर्स बाकी नहीं रही थी। वो सब मारे जा चुके थे। इस बगावत के सारे अहम किरदार जजीरे से जा चुके थे, सिवाय मेरे, और इम्कान यही था कि मेरे साथ ये बेचारे बेगुनाह भी ऑर्गेनाइजेशन के गौजो गजब का निशाना बनेंगे। अपने जरा से नुकसान पर आपे से बाहर होकर दूसरों को निस्तो नाबूद करने की कोशिश करना इन अक़वाम का वतीरा था। दूसरी जंग अजीम में जापान इसकी एक मिसाल था। पर्ल हार्बर का इंतकाम लेने के लिए अमेरिका ने पूरे जापान पर कारपेट बमबारी करके इसे खंडात में बदल दिया था। इस पर भी उसकी आतिश गजब सर्द नहीं हुई तो उसने शिकस्त खोरदा जापान पर 2 एटम बम फेंक कर लाखों अफराद को मौत की नींद सुला दिया। मुझे जरा भी खुशफहमी नहीं थी कि इस बदनाम माफिया को होने वाले इस नुकसान के बाद मुझसे कोई अच्छा सलूक होगा। मुझे ज्यादा गहरी चोटें नहीं आई थी, मगर जो भी थी वो खासी दुख दे रही थी। इस वजह से मुझे सुन कर देने वाली दवा दी जा रही थी। खाने के बाद एक डॉक्टर ने आकर मुझे इंजेक्शन दिया। इसने बताया नहीं था कि वो मुझे नींद का इंजेक्शन दे रहा है, वरना मैं उसे लगाने ही नहीं देता। मैं अस्पताल से फरार के इम्कानात पर गौर कर रहा था और यही सोचते सोचते सो गया। दोबारा आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मेरी हालत कल के मुकाबले में खासी बेहतर थी। जाहिर है मुसक्कन इंजेक्शन का असर खत्म हो गया था, इसके बावजूद दर्द हल्का था।
मैंने सराहने लगी घंटी की तरफ देखा और उठकर आहिस्ता से दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर वो बाहर से बंद था। यानी रात को मुझे नींद का इंजेक्शन इसलिए दिया गया था कि कोई हरकत करने की कोशिश न करूं। वापस आकर मुझे घंटी का बटन ही दबाना पड़ा था। चंद मिनट बाद एक मुसल्ला शख्स अंदर आया। इसके पीछे थाई नर्स भी थी। अब मुझे मुकम्मल जेर निगरानी रखा जा रहा था। नर्स ने मुझे नाश्ता कराया और दवाएं दी। खाने से पहले मैंने गोलियां गौर से देखी, लेकिन यह अंदाजा करना नामुमकिन था कि इसमें कोई ख्वाब आवर दवा भी है या नहीं। नर्स ने मुझे दवा दी और बर्तन लेकर चली गई। अलबत्ता मुसल्ला शख्स वहीं रहा। इसने जंगी टाइप की वर्दी पहन रखी थी। मैंने उसकी तरफ देखा। क्या तुम्हें मुस्तकिल मेरे सर पर मुसल्लत कर दिया गया है? बको मत, वो गुर्राया। अभी नर्स दोबारा आएगी। अच्छा, मैंने सर हिलाया। नर्स चंद मिनट बाद आई और उसने मुझसे कपड़े उतारने को कहा। मैंने मुसल्ला शख्स की तरफ देखा। इसके सामने मुझे शर्म आएगी, ये नहीं जा सकता था। नर्स ने बेबसी से मेरी तरफ देखा। प्लीज मेरी बात मान लो। बादल ख्वास्ता मैंने कपड़े उतारे। अब मेरे जिस्म पर सिर्फ अंडरवियर रह गया था। नर्स ने पट्टियां बदली और जख्मों पर खुश्क करने वाला पाउडर लगाकर दूसरी पट्टियां कर दी। फिर जहां सोजन और नील थे वहां जल नुमा चीज लगाई। आखिर में स्पिरिट नुमा शय से जिस्म साफ करके उसने मुझे कपड़े पहनने की इजाजत दे दी और मुसल्ला शख्स के हमरा रुखसत होगी। मगर इस बार मुझे कोई सुकून की दवा नहीं दी गई थी, क्योंकि मैं ज़हनी तौर पर खुद को चाको चौबंद महसूस कर रहा था। खाने के 1 घंटे बाद मैंने कमरे में चहलकदमी शुरू कर दी। हरकत में रहने से जिस्म चुस्त रहता था। जब थकन महसूस करता तो लेट जाता। दोपहर तक मैंने कई बार चहलकदमी की और फिर घंटी बजाई। स्पीकर से आवाज आई, यस, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? मुझे सख्त किस्म की भूख लगी है, खाना ले आओ। अगर मछली और अंडे हो तो बेहतर है। सर, निस्फ घंटे में आपको खाना मिल जाएगा, निस्वानी आवाज ने कहा। निस्फ घंटे बाद मुसल्ला शख्स अंदर आया और उसके पीछे नर्स खाने से भरी ट्राली लेकर आई थी। यह लंगर था जो मेरे लिए था। इसमें कई तरह की चीजें थी। मैंने उबले हुए अंडे का एक सैंडविच और उबली हुई मछली ली। खाना सामने वाली बेड ट्राली पर रखकर नर्स इस मुसल्ला शख्स के साथ रुखसत हो गई थी। टटकर खाना खाने के बाद मैं बिस्तर पर दराज हो गया और जरा देर में सो चुका था। नर्स ने मुझे दवा के लिए भी नहीं जगाया था, बस बर्तन समेट कर रुखसत हो गई। चाहे यहां पर इसी तिब्बी असूल पर अमल होता था कि मरीज या जख्मी सो रहा है तो उसे सोने दो, क्योंकि नींद सबसे बेहतर इलाज है। मेरी आंख खुली तो मैं खुद को तरोताजा महसूस कर रहा था। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं कमरे में अकेला नहीं हूं। मैंने सर घुमाकर बिस्तर के बराबर में रखी बेंच की तरफ देखा। वहां इलेक्ट्रिक बैठा था। तुम? मैंने कहा। दुश्मने जहां यहां भी आ गए। तुमसे सॉरी करने आया हूं, उसने सर्द लहजे में कहा। मुझे मालूम नहीं था कि तुम फिट नहीं हो। खैर, अब तुम जब पूरी तरह फिट हो जाओगे तो तुमसे मेरा फिर मुकाबला होगा। फिर मुकाबला? मैं कराहा। क्या मैं सारी उम्र तुमसे लड़ता रहूंगा जब तक मेरी तसल्ली नहीं हो जाती? कल हम यहां से रवाना होंगे और शायद 1 महीने बाद मैं दोबारा तुमसे मिलूंगा। इस वक्त अलविदाई मुलाकात के लिए आया था। शुक्रिया, मैंने बंदा कर कहा। बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। वो मेरे नजदीक आया। उसके चेहरे पर भी कई जगह मेडिकेटेड पट्टियां चिपकी थी। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। यूसुफ, अगर ये तुम मेरे दुश्मन हो, लेकिन मुझे एतराफ है कि मैंने आज तक इतना आला ज़र्फ दुश्मन नहीं देखा। यही बात मैं तुम्हारे बारे में जरा सी हिम्मत करके कह सकता हूँ। मैंने उसका हाथ थाम लिया और फौरन ही मुझे लगा जैसे उसके और मेरे हाथ के दरमियान में कोई शय हो। लेकिन ये बताओ कि मेरे आला ज़र्फ होने का इतना बड़ा जुर्म है जो तुम मुझे मुआफ करने के लिए तैयार ही नहीं हो? वह हंसा। ऐसा ही समझ लो, जिस तरह अपना दोस्त उम्र भर के लिए होता है, इसी तरह अपना दुश्मन भी छोड़ने को दिल नहीं चाहता। मैं अपने बारे में यही कह सकता हूँ। पता नहीं क्या बात है, ये तुम लोगों को मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों हो गई? चांदगरे अलग मेरी जान को चिमटा है। मैंने सर्द आह भर के उसका हाथ छोड़ दिया। वो चीज मेरे हाथ में आ गई थी। ओके बाय। वो फौरन ही कमरे से निकल गया। मैंने महसूस किया कि मेरे हाथ में छोटा सा बंद किया हुआ कागज है। मेरे पैर के पास तय की हुई चादर रखी थी। इलेक्ट्रिक का ये कागज देने का अंदाज मुझे समझा गया था कि अब खुफिया तरीके से मेरी निगरानी हो रही है। मेरी आवाज सुनी जा रही थी और शायद कोई कैमरा मेरी नकलो हरकत भी रिकॉर्ड कर रहा था। अगरचे चारों तरफ बगौर मुआयना करने पर भी मुझे कोई मशकूक चीज नजर नहीं आई थी, मगर साइंस और टेक्नोलॉजी ने तरक्की करके इस किस्म के आलात को इतना मुख्तसर कर दिया था कि इन्हें छुपाना आसान हो गया था। मुमकिन है कैमरा और माइक इसी खुफिया स्पीकर में हो जिससे मैं बटन दबाकर बात करता था। कोई खतरा मोल लेने की बजाय मैंने चादर ली और उसे सर तक तान कर लेट गया। दूधिया रोशनी छिन कर अंदर इतनी जरूर थी कि मैं इससे मुख्तसर पर्चे पर बारीक लिखाई पढ़ सकता था। यूसुफ, मैं अब तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं और जो बात तुम्हारे सामने की वो महज दिखावा थी। मुझ पर एतमाद करो, मैं तुम्हें इन लोगों के चुंगल से निकाल लूंगा। बस कल तक इंतजार करना और प्लीज कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे इन लोगों को तुम्हें मारने का मौका मिल जाए। तुम्हारे बारे में ऊपर से बहुत सख्त अहकामात आ गए हैं।
जजीरे की तबाही ने इन लोगों को मुश्तइल कर दिया और अब ये इंतकामी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। जिस पर जरा सा शुबा हुआ उसे दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार देंगे। कागज पर इलेक्ट्रिक का नाम नहीं लिखा था और ये उसी की तहरीर थी। नीचे एक मुख्तसर सा जुमला था, इसे जाया कर देना। मैंने कागज मुंह में डाल दिया, इसे चबाकर कुछ देर बाद बाथरूम में ले जाकर थूक दिया और फिर कमरे में आकर चहलकदमी करते हुए इस पर्चे के बारे में गौर करने लगा। क्या यह इलेक्ट्रिक के ज़मीर की आवाज़ थी या इन लोगों की कोई चाल? मगर इलेक्ट्रिक जैसे शख्स से मुझे किसी किस्म की चाल की तवक्का नहीं थी। दूसरे, इन लोगों को मुझे फरार से रोकने के लिए किसी चाल की जरूरत नहीं थी। मैं पहले ही इनके काबू में था और दूसरे में फरार होकर कहाँ जा सकता था। अकेले आदमी के लिए इस जजीरे से फरार मुमकिन नहीं था। मंतकी लिहाज से इलेक्ट्रिक पुरखुलूस था, लेकिन अक्ल ने मुझे मशवरा दिया कि किसी की बजाय अपने जोरे बाजू पर भरोसा करो और यूं ही मौका मिले इसे भरपूर फायदा उठाओ, मगर साथ ही एहतियात से काम लूं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त थी कि ये लोग इस वक्त बोलाए हुए कुत्ते हो रहे थे। जरा सी हरकत पर वो मुश्तिल होकर मेरी जान ले सकते थे। शाम को एक बार फिर तिब्बी इमदाद के मरहले से गुजारा गया। मुझे रात के खाने में सब्जियों का शोरबा था, गोश्त भी था, लेकिन इसके बजाय मैंने फिर मछली ले ली, लेकिन इस बार तली हुई थी। खाने के बाद मुझे दवाएं दी गईं और इस बार इनमें कोई ख्वाब आवर दवा भी थी। मैं एक बार फिर सो गया। सुबह उठा तो नाश्ते और तिब्बी इमदाद के मरहले से गुजार कर मुझे खास किस्म की जैकेट पेश की गई। वो कैदियों को एक बिस्तर से दूसरे बिस्तर ले जाते वक्त पहनाई जाती थी और उसमें आदमी के हाथ बंद के रह जाते थे। वो अपनी मर्जी से उंगली भी नहीं हिला सकता था। बंदूक के जोर पर मुझे ये जैकेट पहनाई गई। इसके बाद मेरे पैरों में बेड़ियां पहनाई गई कि मैं एक कदम इंच से ज्यादा बड़ा नहीं उठा सकता था। इसके बाद 2 अफराद तकरीबन मुझे खींचते हुए अस्पताल के लाउंज तक लाए। मैंने देखा कि अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों में डायनामाइट लगाया जा रहा था। अमला एक तरफ हरासा खड़ा था, न जाने इनके साथ क्या सलूक होता। एक कमांडर नुमा शख्स एक तरफ खड़ा चिल्ला चिल्ला कर अहकामात दे रहा था। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, मगर इसके अंदाज से लग रहा था कि इसे यकीन हो कि एक लम्हे के लिए भी इसकी आवाज रुकी तो इर्द गिर्द मौजूद अफराद की हरकतें ही रुक जाएंगी। मुझे ले जाकर उसके सामने पेश किया गया। उसने मुस्कुरा कर मुझे देखा। मिस्टर यूसुफ, मेरा नाम यूसुफ है, मैंने तस्दीक की और मुझे उस पर पछताना पड़ा था। इसका घोंसा मेरे पहले से मजरूब सर पर किसी हथौड़े की तरह लगा। सर बगैर मुतवक्का थी, इसलिए मुझे चक्कर आ गया। दोनों आदमियों ने मुझे ना पकड़ रखा होता तो मैं पीछे गिर सकता था। जब चक्कर रुका तो उसने गुर्रा कर कहा, मिस्टर, आइंदा मेरी बात मत काटना। ठीक है, मैंने खुशदिली से कहा, वरना तुम मुझे काट लोगे। इस बार घोंसा मेरे पेट पर पड़ा था, लेकिन मैं तैयार था। पेट सख्त कर लिया था, इसलिए ज्यादा असर नहीं हुआ। उसने गौर से मुझे देखा और मुस्कुराने लगा। यकीनन तुमसे एक तफसीली मुलाकात करनी पड़ेगी। जरूर, लेकिन मुझसे मुलाकात के ख्वाहिशमंदों की लाइन तवील है। बारी आ जाने पर तुम भी मिल लेना। मैंने लापरवाही से कहा, ये मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है? कर्नल रिचर्ड को मुलाकात के लिए किसी बारी का इंतजार नहीं करना पड़ता। वो सफाकाना लहजे में बोला, जिससे मिलना हो उसे बुला लेता है और कहाँ जा रहे हो ये मंजिल पर पहुंचकर पता चल जाएगा। इसके इशारे पर दोनों गुर्गे मुझे खींचते बाहर खड़ी जीप तक लाए। मैंने देखा कि कस्बे के लोग एयरफील्ड की तरफ रवां थे। वो पैदल जा रहे थे और वर्दियों में मलबूस मुसल्ला अफराद इनकी निगरानी कर रहे थे। इमारतों को डायनामाइट लगाया जा रहा था। कोया जजीरे से मुकम्मल इनखला का फैसला कर लिया गया था और यहाँ मौजूद गुलामों को दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा था। एक अहम तरीन मरकज जो इन लोगों के लिए हर साल बेशुमार दौलत कमाता था। यहाँ से वो इर्द गिर्द के ममालिक में दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ इस इलाके के बहरी ट्रैफिक को कंट्रोल करते थे। तबाह होकर इन लोगों के हाथ से निकल गया था। इनके बेशुमार आला दिमाग मारे गए थे। यह ज्यादा बड़ा नुकसान था। इसके जिम्मेदारों के खिलाफ वो जो भी करते कम ही होता। जीप एयरफील्ड के पास रुकी। रनवे के इर्द गिर्द का इलाका साफ किया जा रहा था। लगता था जैसे वहां बड़े त्यारों के उतरने का बंदोबस्त किया जा रहा है, ताकि हजारों की तादाद में गुलामों के अलावा काम का सारा सामान खास तौर से गाड़ियां ले जाई जा सकें। वो दोनों मुझे लेकर चलते हुए त्यारों की तरफ जाने लगे। मुझे उनका साथ देने में खासी दुश्वारी पेश आ रही थी। वो खींचते हुए मुझे एक त्यारे तक ले आए। ये 10-12 नशिस्तों वाला छोटा सा त्यारा था। मैंने एक गुर्गे से कहा, मैं इसमें कैसे चढ़ूंगा? मेरा पांव ऊपर नहीं उठता है। ऐसे उनमें से एक ने कहा और दोनों ने बाजू से पकड़कर मुझे अंदर फेंक दिया। सर त्यारे के फर्ज से बचाने के लिए मुझे खासी कोशिश करना पड़ी थी। अंदर आकर उन्होंने मुझे एक नशिस्त पर बिठा दिया। अकबी नशिस्त पर एक शख्स मुंह पर फ्लैट हेड रख के शायद सो रहा था। चंद मिनट बाद 4 अफराद मजीद इसी तरफ लाए गए। इन सब ने बेबस कर देने वाली जैकेट पहन रखी थी। इनमें से 2 सूरतों से चटे हुए पेशावर मुजरिम लग रहे थे। एक प्रोफेसर किस्म का नस्तालीक नजर आने वाला शख्स और चौथा मस्कीन सा था। इसे देखकर लगता था कि इसे बेकसूर ही पकड़ा गया है। इसे लाकर मेरे बराबर वाली सीट पर धकेल दिया गया। दोनों तरफ एक एक नशिस्त भी और दरमियान में गुजरने की जगह थी। मैंने हमदर्दी से उसे देखा। किस चक्कर में पकड़े गए हो?
اس کی صورت پر نہ جاؤ، اسے لانے والی نگران نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ 15 قتل ہیں اس کے کھاتے میں۔ عورتوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بنا کر اتنی صفاقی سے قتل کرتا ہے کہ ہٹلر دیکھ لے تو کانپ جائے۔